In most of the world today, we celebrate Thanksgiving, and it's a special day for us. संपूर्ण संसार के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर आज धन्यवादी पर्व को मनाया जा रहा है. And I gladly bring you greetings from each other, our family, who we can see, and those who we cannot see. और वे जो दृश्य हैं और अदृश्य हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उन सब की ओर से मैं आपके लिए शुभकामनाएं लेकर के आता हूं. Many congregations are open today. बहुत सी मंडलियां आज सुचारू रूप से चालू हैं. But also special greetings from our district apostle and our chief apostle. और विशेष शुभकामनाएं हमारे मुख्य प्रेरित और जिला प्रेरित के पास से मैं आपके लिए लेकर के आता हूं. And whatever the condition, I wish that the peace of Jesus reigns in your hearts and minds. कैसी भी परिस्थिति हो, मैं ये इच्छा रखता हूं कि आपके दिलों में और दिमाग के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शांति कायम रहे. Sisters, for this festive service, I have taken a word out of the book of Ephesians, chapter 5 and verse 20. मेरे प्रियो, आज के विशेष दिन के अंदर मैंने आज एक पद को लिया है जो कि इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत है. Giving thanks always and for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो. Thus far. यहां तक. Please be seated and the choir can prepare away, please. मेहरबानी से बैठ जाएं और मैं निवेदन करूंगा यहां गीत समूह से कि वे मार्ग तैयार करें. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. My beloved प्रिय अजीजों, brothers and sisters in Christ, मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, dear friends and guests in all the connected locations. मित्रों, अतिथिगणों और जो कोई यहाँ पर दूसरी जगहों से यहाँ जुड़े हुए हैं, Every divine service is special. प्रत्येक डिवाइन सर्विस महत्वपूर्ण है. But today, as you know, is Thanksgiving, and it is one of the most special days in our church calendar. और आज के दिन के अंदर जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक विशेष धन्यवादी दिवस की सभा है और ये हमारे चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. I'm sure every one of you has prepared yourself for it, and much preparation has gone on physically and in our hearts and minds and souls. और मैं आशा करता हूं आप में से प्रत्येक जनों ने इस चीज के लिए, इस सभा के लिए तैयारी की है और यहाँ पर हमने सांसारिक रीति से भी और साथ में हमारे हृदयों के अंदर भी इस विशेष दिन के लिए तैयारी की है. Let us also be aware that our Heavenly Father also has prepared much for us. He has prepared for us a great blessing.
आप भी इस बात को लेकर के जागरूक हो जाएं कि हमारे स्वर्ग के पिता ने भी बहुतेरी तैयारी कर रखी है और वह हमें लिए बहुत बड़ी आशीष को रखता है। Yes, we come together and we give thanks, we praise God. हाँ, हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर के निकट आते हैं, उसको धन्यवाद और स्तुति देते हैं। But you know, our Heavenly Father, He is not a human being. आप जानते हैं हमारा स्वर्ग के पिता मानव नहीं है। As human beings, we like to be thanked, we like to be praised. और जैसा कि मनुष्य जो है वो ये चाहता है कि उसे धन्यवाद मिले, उसको स्तुति मिले, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। But our Heavenly Father is not fishing for our thanks and our praise. और हमारा स्वर्गीय पिता हमारे धन्यवाद को और हमारी स्तुति को नहीं देखता। He doesn't want to be flattered. और उसको लेकर के वह नहीं सोचता कि सिर्फ हम उसके लिए वह लेकर के आए। And when we look at it this deeply, thanksgiving is not for God. Thanksgiving is for us. और जब हम इसको गहराई से देखते हैं, ये धन्यवाद का पर्व जो है वो परमेश्वर के लिए नहीं वरन ये हमारे लिए है। Because it's a source of blessing for us, dear brothers and sisters. क्योंकि ये स्रोत है आशीष का हमारे लिए। Because it gives us an opportunity to focus on all the things that we have. और जो कुछ हमारे पास में है उसके लिए ये समय देता है कि हम उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित कर सकें। It's normal for human beings that we focus such a lot of our time and energy on the things that we don't have. और मनुष्य जाति और मनुष्यों के लिए ये बहुत साधारण सी बात है कि वह अपना बहुत सारा समय उन बातों पर लगाता है जो उसके पास नहीं है, और जो चीजें हमारे पास नहीं है उसकी हमारे पास बहुत लंबी सूची है। And when we look at this list or when we focus on the things we don't have, it's a tendency to get angry, to get frustrated. और जब हम उस सूची के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं कि जो चीजें हमारे पास नहीं है, हमारे अंदर गुस्सा पनपता है। Thanksgiving is an opportunity for us to focus on what we have. धन्यवादिता हमारे को वो मौका देती है कि हम उन चीजों के ऊपर ध्यान लगाएं जो हमारे पास है। Just think of the greatness of His grace that He has given us. आप उस चीज को सोचिए कि परमेश्वर की महानता का अनुग्रह जो उसने हमें दिया है। I remember years ago, somebody described grace as undeserved love. और कुछ समय पहले मेरे को याद है किसी ने इस अनुग्रह के विषय में बताया था कि जिसके लायक हम नहीं हैं वो हमें परमेश्वर देता है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की छवि से हम बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी वह हमसे प्रीति रखता है। And when we think of this great grace, then my dear brothers and sisters, we realize actually how rich we are. जब मैं इस महान अनुग्रह के विषय में सोचता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तब हमें यह एहसास होता है कि हम कितने धनवान हैं। Isn't that a great blessing? क्या यह बहुत बड़ी आशीष नहीं है हमारे लिए? And then we go further and think about the future that He has prepared for us. और फिर हम आगे की ओर देखते हैं कि परमेश्वर ने भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है। Over and over again we have heard about how He will come to take His bride to be with Him. बार बार हमने इस बात को सुना है कि किस रीति से वह आएगा और अपनी दुल्हन को लेकर के जाएगा। And to those who enter into the first resurrection, we go to a new heaven, a new earth, and we sing a new song. अब प्रथम पुनरुत्थान के भागीदारी जो लोग होंगे वह नई सृष्टि के अंदर प्रवेश करेंगे और एक आनंद का गीत वहां गाएंगे। Brothers and sisters, gives us an opportunity to focus on this great future. इस भविष्य के ऊपर ध्यान लगाने के लिए धन्यवादिता हमें मौका प्रदान करती है आज। We don't live as people who are hopeless.
हम उनके लोगों की तरह नहीं है जो आशाहीन हैं। We have been given a great future, हमें भविष्य, बहुत सुनहरा भविष्य हमारे लिए रखा गया है और दिया and गया है, it fills our hearts with thanks, with gratitude to God. और परमेश्वर के लिए कृतज्ञता और धन्यवाद हमारे मन के अंदर इस बात को लेकर के भर जाते हैं। And you know, our thanksgiving is a great indicator of our spiritual maturity. और हमारी आत्मिक परिपक्वता की ओर चिन्ह करता है हमारा ये धन्यवादिता। In other words, the more spiritually mature we are, the more thankful we are. और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि आत्मिक रीति से यदि हम जितने परिपक्व हैं, उतना ही हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं। Just think about it. इसके विषय में सोचें। And we can go on and on thinking about the small and the great things He has done. और छोटी से छोटी चीज जो उसने हमारे लिए की है, हम उसके विषय में सोच सकते हैं। And for what should we be really thankful? और वाकई में हमें किस चीज के लिए धन्यवादित होना चाहिए? Our verse here says, for all things. आज का वचन हमें यहाँ बताता है कि सब बातों के लिए, being thankful always and being thankful for everything. हमेशा धन्यवादित रहना है और सब बातों के लिए धन्यवादित रहना है। That's really not so realistic, is it? और ये सच्चाई नहीं है। Imagine everything goes wrong and we are expected to sing hallelujah. Is that possible? और इस बात को सोचे कि सारी चीजें सही नहीं जा रही और हम हालेलुया के गीत गाएं। And we go singing and dancing even in bad times. Not possible. और बुरे समय के अंदर भी हम धन्यवाद दें और नाचें, ये संभव नहीं है। You know, even in the life of the Lord Jesus, it was not every day that He was able to be happy and sing hallelujah. और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर यदि हम देखें तो उसके जीवन में प्रतिदिन ऐसा नहीं था जिस दिन वह खुश और हमेशा आनंदित ही और हालेलुया कह करके गाता हो। और यदि हम आज के वचन में देखते हैं, उसके दूसरे भाग में वो बताता है कि हमें किस रीति से धन्यवादित होना है। In all things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। So this Thanksgiving Day, I want to just remind us that each other that whatever we say thanks for, let it be in the name of the Lord Jesus Christ. आज धन्यवादी दिवस के दिन के अंदर मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जिस किसी बात के लिए हम धन्यवादित हैं, वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो। It means that first of all, we are thankful for His sacrifice for the salvation that He has given us. सबसे पहली बात, हम उसके बलिदान के लिए और उसके द्वारा लाए गए उद्धार के लिए हम धन्यवादित हों। And everything just out of love. और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो प्रेम में हो करके हम करें। Talking in the sacristies, some of the ministers and me. और मैं और मेरे सहसेवक गण हम सैक्रिस्टी में बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे थे। Is it really valid when we pray we don't say in the name of the Lord Jesus Christ? क्या ये सही होगा यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को ना करें? I notice that very often people forget to end in the name of Jesus. और मैंने ये अक्सर देखा है, बहुत से लोग भूल जाते हैं प्रार्थना का अंत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करने के लिए। But it's very important, my dear brothers and sisters. लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Because remember what He said, I am the door. क्योंकि आप इस बात को स्मरण रखें, उसने कहा है कि मैं दरवाजा हूं। No man can come to the Father but by me. और कोई भी मेरे बिना पर पिता तक नहीं पहुंच सकता। We acknowledge that His sacrifice gave us access to God.
और हम इस बात को मानते हैं कि उसके बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर तक पहुंच मिली है। And so we always remember that to pray in Jesus' name is not just a ritual, that is the door. और ये हम ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना साधारण बात नहीं है, वरन वह ही द्वार है। He sacrificed his life just out of pure love. उसने मात्र शुद्ध प्रेम में होकर के अपने जीवन की आहुति दी। We couldn't deserve it. हम उस लायक नहीं थे। And when we read in the same book of Ephesians in the first chapter, in the 4th verse, he says, he elected us before the foundation of the world. और जब हम इसी इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय उसकी 4थी आयत के अंदर पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। Even before we were born, he already loved us and decided to die for us. और हम जब पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले ही उसने हमें चुन लिया और उसने निर्णय ले लिया कि वह हमारे लिए अपने प्राणों को देगा। And when we think of it this way, dear brothers and sisters, then in every situation we will be able to give thanks to the Lord Jesus. और जब हम इस रीति से सोचते हैं, तो हम प्रत्येक परिस्थिति के अंदर उसको धन्यवाद देने लायक होंगे। Just a little example of some of our brothers and sisters or human beings. कुछ उदाहरण हमारे प्रिय भाइयों बहनों के विषय में है। My mind goes to the Apostle Paul and Silas. मेरा जो ध्यान है वो प्रेरित पौलुस की तरफ जाता है। They testified about God, about Jesus Christ. उसने प्रभु यीशु मसीह की साक्षी दी। People didn't like it. They caught them and they beat them up. और लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनको मारा कूटा। They were put in jail. उनको जेल के अंदर, बंदी गृह के अंदर डाल दिया गया They were quite badly beaten. और उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। But if you read what happened, लेकिन यदि आप पढ़ें कि वहां क्या हुआ, these men were so convinced of the love of God that they sat with beaten bodies in the jail, praising and glorifying God. और ये लोग जो मार खाए हुए थे, उनको देख करके दूसरे लोग इतने प्रभावित हुए, प्रोत्साहित हुए कि वे उनके साथ के अंदर बैठ करके वहां प्रभु की महिमा करने लगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, situations in life are not always a bed of roses, they say. और जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के अंदर हमेशा फूलों के We समान all नहीं know होती। the amount of suffering and the amount of problems that there are in the world. और हम जानते हैं कि संसार में किस तरीके की परेशानियां और कष्ट हैं। But the Lord Jesus went through such suffering himself. लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं इन सारे कष्टों में से होकर के गुजरा। And when we suffer, he suffers with us. और जब हम इस कष्ट को उठाते हैं, वो भी हमारे साथ उन कष्टों के अंदर सहभागी होता है। And in whatever the condition, in whatever suffering, let us learn to give thanks in Jesus' name. और जो भी परिस्थिति हो, जो भी कष्ट हो, उसके अंदर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देने के अंदर सक्षम ठहरें। And then we are thankful for his sacrifice. और तब हम प्रभु उसके बलिदान के लिए धन्यवादित होते हैं, And for his love. उसके प्रेम के लिए। We are also thankful for his grace. हम उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवादित हैं। Just imagine that whenever we come to him, he is ready to forgive us. इस बात को सोचिए कि जब भी हम उसके सन्मुख आते हैं, वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। Whatever we have done, we just come back to Jesus and he says, your sins are forgiven, go in peace.
और कुछ भी हो जाए और हम कुछ भी करके आए, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के जब निकटता में हम आते हैं तो हमें कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, And he doesn't शांति के remember साथ it जाओ। like human beings do. और जिस तरह से मनुष्य हमेशा याद रखता है वह उस तरीके से याद नहीं रखता। You know, we have a famous saying in English, I will forgive, but I will never forget. अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है कि मैं क्षमा कर दूंगा लेकिन भूलूंगा नहीं। But that's not the way our Heavenly Father forgives. इस तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता क्षमा नहीं करता। The Lord Jesus forgives us and it's just cleared off. No more debt. और प्रभु यीशु मसीह जब हमें क्षमा करता है तो वहां कुछ नहीं बचता, हर एक ऋण उतार दिए जाते हैं। Even if I am the worst sinner, तब भी जब मैं सबसे खराब पापी हूं, just like the prodigal son, the lost son, you know, when he came back, the father was willing to embrace him. उड़ाव पुत्र के विषय में हम देखें, जब वो आया तो पिता ने उसको बड़े ही नम्रता के साथ अपने गले अपने पास लिया और उसको क्षमा किया। What grace, my dear brothers and sisters. कितनी महान अनुग्रह हमारे लिए है मेरे प्रिय भाई और बहनों। Our hearts are filled with thankfulness for this grace. और आज सुबह के समय के अंदर हमारे हृदय जो हैं वो इसी के लिए धन्यवाद से भरे हुए हैं। Thankful for his sacrifice that it would lead us back to the Father. और उसके उस त्याग के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है कि हम पिता तक पहुंचे। Thankful for the grace of the forgiveness of our sins. और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। One is the past, it's history. जो भी पीछे निकल गया वो इतिहास है। Second one is today. We receive grace today. और आज हमें अनुग्रह प्राप्त हो रहा And है then we are also thankful for the future, और हम उस चीज के लिए भी धन्यवादित हैं जो कि भविष्य के अंदर है। knowing that he wants to share his glory with us. जानते हैं कि वह अपनी महिमा को हमारे साथ साझा करना चाहता है। He is not selfish and says, no, 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 that doesn't belong to you. वह स्वार्थी नहीं है और वो इस तरह नहीं कहता कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। The Lord Jesus already said, what is mine is yours. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा है वो तुम्हारा है And he wants to share this glory with us. और वह इस महिमा को हमारे साथ साझा करना चाहता है। So we give thanks for his sacrifice, for his grace, and for his future, for the glory. इसलिए हम उसके बलिदान के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और इस भविष्य की महिमा के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। So that's the way we give thanks in Jesus' name. और इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। Another way we can give thanks in Jesus' name is in our words. और एक दूसरी रीति से भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद दे सकते हैं, वो है हमारे वचनों में, हमारे शब्दों के अंदर। And these words, we just have to use the words that Jesus himself did. और हमें ये वो शब्द इस्तेमाल करने हैं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए थे, Because he also gave thanks in his words. क्योंकि उसने भी अपने शब्दों के अंदर, अपने वचनों के अंदर धन्यवाद दिया है। Let me give you an example in our words, how we can thank God in Jesus' name. मैं आपको एक उदाहरण दिया चाहता हूं कि किस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने शब्दों के द्वारा धन्यवाद दे सकते He हैं। said, Father, I thank you that you did not reveal this salvation to the wise people, but you revealed it to babes, to people who really didn't know anything. स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने इस प्रकाशन को सब पर प्रकट नहीं किया, धनवानों पर प्रकट नहीं किया, वरन उन लोगों पे जो कि नम्र थे, जो इसके लायक And नहीं थे, उनके ऊपर किया। we can be thankful just like Jesus did. We can use the same words. और हम इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की रीति से उसके द्वारा कहे गए वचनों के अनुसार हम धन्यवाद दे Just सकते हैं। imagine if our salvation depended on how wealthy we were, for example. और एक मैं उदाहरण के रूप में कहता हूं कि यदि हमारा उद्धार जो है वो हमारी जो Oh, if you सांसारिक, want to go to heaven, you have to pay so much of money.
कि यदि आपको स्वर्ग के अंदर जाना है तो आपके पास के अंदर इतना सारा पैसा होना चाहिए Or one of या the धन others या says, धन होना no, चाहिए, you are not educated enough. You have to have so many degrees to go to heaven. और कोई यदि आपसे ये कहे कि आपके पास के अंदर इतनी शिक्षा नहीं है, आपके पास में ये स्नातकता नहीं है कि आप स्वर्ग के अंदर जा But सकते that हैं, was, but that was not the case. लेकिन ऐसा नहीं है। He just revealed himself to people, to me and to you. And we can all say, yes, I'm not the richest man, I'm not the most educated, but God revealed his salvation plan to me. लेकिन उसने अपनी उद्धार की योजना को समस्त लोगों तक बांटा और साझा किया, और चाहे हम उसके लिए उतने धनवान ना हो, उतने शिक्षित ना हो, फिर I'm भी not perfect. I'm not so successful. मैं हो सकता है यहां पर उत्तम ना हूं, मैं यहां पर We can be विजयी ना thankful, हूं, but the only condition is that we have to be humble in our life and that we have to just believe. और हमारे लिए यहां पर जो शर्त रखी गई है कि हमें नम्र होना है और उस पर विश्वास रखना है। We didn't need all these other things. और ये बाकी सारी चीजें जो हैं वो हमारे उद्धार के So लिए let us आवश्यक give नहीं है, thanks like the way Jesus did. और इसलिए हम जैसा प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, हम उसी तरह से धन्यवाद दें। In another place, the Lord Jesus gave thanks एक दूसरे स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया that his Father had already heard him and answered his prayer. कि पर पिता ने उसकी प्रार्थना को पहले ही सुन लिया और प्रभु ने उसके लिए धन्यवाद दिया। You all know the story of the dead man Lazarus. आप लाजर की उस कहानी को जानते हैं, आप में से प्रत्येक जन। Jesus went there to the grave and everybody knew Lazarus was dead. और यीशु वहां कब्र तक पहुंचा और वहां पर सब लोगों को पता था कि लाजर जो है वो मर चुका है। And he prayed to his father and he said, Father, I thank you that you have already heard me. और उसने वहां पर खड़े होकर के कहा कि पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। And here is this man still dead. और यहां पर हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो वहां अभी तक मरा हुआ है। Let us pray as Jesus did, my dear brothers and sisters. और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की उसी रीति के अंदर हम भी मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करें। और उसने कैसे प्रार्थना करी? The Bible says when we pray, if we are one in the Spirit will guide us according to the will of God. और बाइबल हमें बताती है कि यदि हम आत्मा के अंदर एक हैं तो आत्मा हमें मार्गदर्शन देगी कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है। There was a beautiful explanation in last year's calendar how we pray. पिछले साल का जो कैलेंडर है उसके अंदर बहुत अच्छी रीति से बताया गया है कि हम किस तरह से प्रार्थना करें। And let us be aware, dear brothers and sisters, when we pray that we make this deep connection. मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सचेत हो जाएं, जब हम प्रार्थना करें तो हमारा संबंध उसके साथ जुड़ना चाहिए। You have all been baptized with the Holy Spirit. आप सब पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए हुए हैं। And when we connect ourselves to God in His Spirit, और जब आत्मा के अंदर हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं, God the Spirit already knows what is God's will. परमेश्वर जो आत्मा वो जानता है कि हम उससे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, And He guides our prayer according to His will. और उसकी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना का वो मार्गदर्शन करता है। And when we are totally in alignment with the will of God, we can already be thankful because we know we have got it. और जब हम परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित हैं तो वो हमारी प्रार्थना को पहले ही सुन लेता है और उसका जवाब दे देता है। So let us be thankful in our words. इसलिए हम अपने वचनों में, अपने शब्दों के अंदर भी धन्यवादित हों, Things that we have not yet got. और उन लोगों के लिए भी हम धन्यवाद दें जो हमें अभी तक नहीं मिली हैं। There's one more thing how we can be thankful in our words. एक और चीज जो कि मैं बताना चाहूंगा कि हम किस तरह अपने वचनों के अंदर धन्यवादित रह सकते हैं, Something that is really not easy for us. जो कि हमारे लिए बहुत आसान नहीं है।
do you think about the sinner? आप एक पापी We के come विषय में across every day in our daily life. क्या सोचते हैं जो आपके सामने से रोज गुजरता है? Oh, now we have become, goody Christians and holy ones, and they're all sinners, right? अब हम एक पवित्र मसीही जन बन चुके हैं और बाकी लोग जो दूसरे हैं वो पापी हैं, अशुद्ध हैं। Sometimes this brother or this sister who comes and sits with me in church is really not such a good person. He's really bad. He's a sinner. और अब मेरे पास के अंदर, कलीसिया के अंदर, चर्च में जो मेरे पास आकर के भाई या बहन बैठ रहा है, वो अब अच्छा इंसान नहीं है, वो बुरा है, अशुद्ध है। When we see somebody whom we don't like sitting in church near us, right? और हमारे पास के अंदर जिसको हम पसंद नहीं करते, यदि वो हमारे पास में बैठा है तो हमें अच्छा नहीं लगता। And then we become angry. और तब हम गुस्से से भर जाते We हैं, become angry with God. हम परमेश्वर के साथ नाराज हो जाते हैं। How can the sinner get the same thing that I get? और एक पापी के लिए वो चीज कैसे मुहैया हो सकती है जो कि मेरे लिए है? I remember some years back, even one of our apostles was very upset when the chief apostle was talking about the sinner getting the same reward as what we get. और कुछ समय पहले मुझे याद है, एक प्रेरित बड़े नाराज हो गए थे जब मुख्य प्रेरित ने यह कहा था कि एक पापी को भी वही प्रतिफल मिलेगा जो कि एक मसीही विश्वासी जन को मिलेगा। How can that be, chief apostle? मुख्य प्रेरित, ऐसा कैसे हो सकता है? I came to Sunday every service. मैं प्रत्येक रविवार को डिवाइन सर्विस के अंदर आया हूं। My wife gave up her job so that I can serve God. मेरी पत्नी ने अपनी नौकरी को छोड़ा है ताकि मैं प्रभु की सेवा कर सकूं। And you say that this sinner can also enter the kingdom of God and get the same reward? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पापी भी प्रभु के राज्य के अंदर प्रवेश करेगा और उसको भी समान प्रतिफल मिलेगा? It's a plain fact, dear brothers and sisters. We have to accept it. ये सत्य है जिसे हमें समझना होगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। On this Thanksgiving Day and in the days in the future, ये धन्यवाद दिवस के दिन और आने वाले समय के लिए let us be thankful for the grace that God has given even the sinner. हम उस अनुग्रह के लिए जो कि परमेश्वर ने पापियों के लिए भी रखी है, हम Let us धन्यवादित हैं। thank God like Jesus did for accepting the sinners. और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को स्वीकार करके किया, वैसे ही धन्यवाद हम भी करें। That becomes more easy when we remember we ourselves were sinners. और ये तब आसान होगा जब हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक समय हम भी वैसे ही पापी थे। Not only were sinners, are still sinners. तब ही नहीं, आज भी हैं। So let us be thankful for the grace that God gives us and the same grace that He gives the worst of the sinners. जो अनुग्रह परमेश्वर हमें देता है, हम उसके लिए धन्यवाद दें, और साथ ही साथ उस पापी के लिए भी विशेष अनुग्रह जो परमेश्वर ने रखा है, हम उसके लिए भी उसे धन्यवाद दें। For His sacrifice, हम उसके बलिदान के लिए धन्यवाद हैं, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवादित हैं। we are also thankful in our words. हम अपने शब्दों के अंदर धन्यवादित हैं। Let us also be thankful in our deeds. हमारे कार्यों के अंदर भी हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित हों। How can we be thankful in our deeds? कैसे हम अपने कार्यों के अंदर उसके प्रति धन्यवादित हो सकते हैं? Let's remember, all of these thankfulness is in Jesus' name. आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, जितना भी धन्यवाद है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। And when we think of what Jesus did in His deeds, और जब हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि प्रभु ने अपने कार्यों के अंदर क्या किया, He just refused anything that came from the enemy, from the devil. जो कुछ भी दुष्ट के द्वारा आया, उसने उस बात का विरोध किया। Of course, the devil doesn't come in a person and stand in front of you.
और व्यक्तिगत रूप से जो शैतान है वो आपके सामने आकर के खड़ा नहीं होता और कहता नहीं है आपसे। But if we have to get something and we have to sin to get it, that comes from the devil. यदि हमें कुछ चीज की आवश्यकता है और उसके लिए उसे पाने के लिए हमें पाप करना पड़े, इसका मतलब वो शैतान के पास Refuse से to do आता है। anything that separates us from God. वो बातें जो कि हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, वो सब बातों को विरोध हमें करना है। My father is the greatest. मेरा पिता महानता है, And I'm not going to allow anything to come in between the connection of me and my father. और मेरे और पिता के मध्य के अंदर मैं किसी भी चीज को आने नहीं दूंगा। Not the most powerful man, बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति भी हो तो भी, not sicknesses, बीमारियां हो चाहे, not even death. यहां तक कि यदि मृत्यु भी क्यों ना The हो। Lord Jesus said, none can pluck you out of my hand. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी मुझे मेरे हाथों में से तुमको नहीं ले सकता My dear है। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let us be thankful for this wonderful guarantee that we have been given. और ये जो हमें गारंटी मिली है, हम उसके लिए परमेश्वर के धन्यवादित हों। So let us give thanks like Jesus did in our deeds. इसलिए हम अपने कर्मों के अंदर प्रभु यीशु मसीह की समानता में धन्यवाद दें। One last deed and then I finish my service. एक आखिरी कर्म, इसके बाद मैं अपनी सेवा को यहाँ समाप्त करूंगा, And that is to serve God. और वो यह है परमेश्वर की सेवा करना। Jesus served his father until the end. प्रभु यीशु मसीह ने अंत तक अपने पिता की सेवा की। When I refer to the catechism, जब मैं कैटेकिज्म की पुस्तक में देखता हूं, when it talks about our divine election, जहां वह हमारे ईश्वरीय चुनाव के विषय में बात करती है, it says there, every person who is elected has been elected for a purpose. वहां ऐसा लिखा गया है कि प्रत्येक मनुष्य जिसका चुनाव हुआ है, वह एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। He didn't just elect you and me just to do some miracles through us and everybody says, hallelujah, great guy. उसने हमें इसलिए नहीं चुना गया कि हम आश्चर्य कर्म करें और लोग देखकर हमें महान कहें और कहें हालेलुया। He elected us to serve him, dear brothers and sisters. उसने हमें इसलिए चुना है कि हम उसकी सेवा करें। And this service doesn't stop और ये सेवकाई कभी समाप्त नहीं होती, till the end. अंत तक। Remember our faith. Even after we die, we continue to serve in eternity. याद रखिए हमारे चुनाव को, यदि हम मर भी जाते हैं तो हम उस अधलोक स्थान के अंदर भी उसकी सेवा करते हैं। And after eternity, when Jesus comes, we continue to serve him in the 1,000-year kingdom of peace. और उसके पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तब भी हम उस 1000 वर्ष के राज्य के अंदर उसके साथ सेवकाई करने पाएंगे। And what happens when we suffer? और तब क्या, जब हम कष्टों को भोगते हैं? Oh, now it's too difficult. Now I suffer. I can't serve him now. मैं बहुत पीड़ा के अंदर हूं, दुख उठा रहा हूं, इसलिए मैं अब सेवा नहीं कर सकता हूं। No, my dear brothers and sisters. नहीं 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 मेरे प्रिय भाई और बहनों, This is what it means, giving thanks always for all things. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में और एक चीज के लिए धन्यवाद देना है। Even when we have to suffer, तब भी जब हम कष्टों को उठा रहे हों, let us fulfill our mission in every situation. प्रत्येक परिस्थिति के अंदर हम अपने मिशन को पूरा करने का प्रयास करें। And then the meaning, what it means in the book of Romans in the 8th chapter. और तब उसका अर्थ जो कि रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के अंदर लिखा है, Between the 28th or the 29th verse, he says, all things work together for the good of them that love God. 28 और 29वें पद के आसपास लिखा है कि एक विश्वासी जन के लिए प्रत्येक चीज मिल मिलाकर भलाई उत्पन्न करती है, To those who are called according to his purpose.
उनके लिए जो उसके अनुसार उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। Everything works for the good. सब कुछ उनके लिए अच्छाई की काम करती है, Even the worst sickness and death. चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, Even to be beaten and put in jail. चाहे मारा कूटा जाने के बाद उनको कैदी गृह में डाल दिया जाए। I so often think of this little boy called Joseph. मैं अक्सर इस नन्हे बालक यूसुफ के विषय के अंदर सोचता हूं। He was loved by his father so much, वो अपने पिता के द्वारा बहुतायतता के साथ प्रेम किया गया बालक था। and then he was pulled away from his father's love, उसको अपने पिता के प्रेम से अलग किया गया, thrown in a well, उसे एक गड्ढे के अंदर डाल दिया गया, then pulled out and sold as a slave. वहां से उसको निकाला गया और उसको दासत्ता के अंदर बेच दिया He गया। goes to a foreign land where nobody knows his God or his father. वो एक ऐसी जगह के अंदर जाता है जहां पर उसको कोई नहीं जानता, उसका पिता भी नहीं है और उसका स्वर्ग के परमेश्वर भी नहीं है। Small boy. एक छोटा सा बालक, And he must be thinking, what happened? और वह सोच रहा है कि क्या हुआ। You know, a slave, he has no freedom. आप जानते हैं कि एक दास जिसके पास स्वतंत्रता He नहीं just है, had to work and work. उसको सिर्फ कार्य कार्य और कार्य ही करना है। And then, for something he didn't do, they took him and put him in jail. और कुछ काम को जब वो नहीं करता तो उसको उठा करके बंदी गृह में डाल दिया जाता है। Just remember the story. आप इस कहानी को याद करें, But towards the end of the story, लेकिन इस कहानी के अंत में when he sees his brothers again, जब वह अपने भाइयों को पुनः देखता है and he becomes a controller of all the food that had to be given in the famine, और अकाल के समय के अंदर जो सारी भोजन वस्ती दी जानी थी उसके ऊपर वह अधिकारी ठहरता है, then he tells his brothers, तब वह अपने भाइयों को कहता है, you thought you were doing this for my evil, but God changed it for our good. तुमने ये सोचा था कि तुम ये सारे कार्य मेरी बुराई के लिए कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छाई के अंदर लाकर हमारे लिए खड़ा किया My dear है। brothers and sisters and friends, मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मित्रों, I really wish each of you a very, very blessed day and days of Thanksgiving. आपके लिए आज के दिन के आशीषित होने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों के लिए भी मैं आशीष आपके लिए चाहता हूं। You can see the produce of the earth here. आप यहां पर जमीन की पैदावार को देख सकते हैं। So even if you are bad, as long as the earth remains, sunshine and harvest will remain. चाहे आप बुरे ही क्यों ना हो, जब तक कि ये पृथ्वी है और यहां पर जमीन की पैदावार उत्पन्न होती रहेगी। On the good and the bad, he gave us such lovely stuff. चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, परमेश्वर ने सबको समानता में दिया है। Many people want to go abroad, बहुत से लोग विदेश जाना चाहते हैं, but you will not get this lovely, beautiful, fresh fruits and vegetables like you get here. और जो यहां पर ताजे फल और सब्जी मिलते हैं वो आपको वहां पर नहीं मिलेंगे। Let me end. यहां पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। You know, many people, little children, made a little placards of what they were thankful for. बहुत से लोगों ने और बच्चों ने एक कार्ड बनाया है कि वे किस बात के लिए धन्यवादित हैं। Also, some elder people. बहुत से वृद्ध लोगों ने भी बनाया है। But we heard so many things this morning that we can be thankful for. लेकिन हमने आज सुबह बहुत सी बातों को सुना है जिसके लिए हम धन्यवादित हो सकते हैं। I'm especially thankful for my wife and for my children. मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए धन्यवादित हूं। Very, very thankful for the grace of my divine election. मैं अपने ईश्वरीय चुनाव के लिए जो आशीष से मुझे मिला है, मैं उसके लिए धन्यवादित हूं। May our Heavenly Father accept all our thanks. हमारा स्वर्गीय पिता हमारे धन्यवाद को स्वीकार करे, Because together we say, thank you, dear God, for your love.
क्योंकि हम एक साथ मिलकर के स्वर्गीय परमेश्वर को कहते हैं कि आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। Amen. आमेन। Yeah, dear brothers and sisters, it's a